Namaste Gurukulians, I hope you all are fit and fine. Today I am going to discuss the equations of motion. These are the equations which correlates velocity, acceleration and distance covered by the object. Students, in the previous video you have learnt about velocity time graph, and with the help of velocity time graph we will derive the equations of motion. And we have three equations of motion. First, velocity time relation. According to it, v equal to u plus at, where v is the final velocity, u initial velocity, a acceleration, t time. So velocity time, this equation correlates velocity with time. If you know about the time, initial velocity and acceleration, then you can find final velocity. Second, position time relation. S equal to ut plus half at square. S is the distance covered, u initial velocity, t time, a acceleration, t time. If you know about initial velocity, time and acceleration, then you can tell the position of the object or distance covered by the object. So it relates distance with time. Third, position velocity relation, and according to it, v square minus u square equal to 2as. V final velocity, u initial velocity, a acceleration, s distance covered. So this equation, this relation relates velocity with distance. So it is a position velocity relation. Clear? Now we will derive these equations of motion. First, second and third. Clear? And from the velocity time graph we will derive this. So, proof. Student, these equations of motion are valid if acceleration is constant. It means if the object is moving with uniform acceleration, then you can apply these equations of motion. And you know very well that in the case of uniform acceleration, velocity time graph is straight line inclined at constant angle with time axis. See, this is the velocity axis. This is time axis. Now consider an object moving with initial velocity u. It means at t equal to 0 the velocity is u. क्लियर? ये बात हमेशा ध्यान रखना जब भी मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करता हूँ. इनिशियल वेलोसिटी का मीनिंग होता है जब टाइम जीरो होता है तो उस टाइम ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी होती है. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. आफ्टर टाइम t, its velocity becomes v. ये थोड़ा ध्यान रखेंगे. मैंने कहा है कि t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है? v. So u is the initial velocity and v is the velocity, final velocity at time t. So students, जब टाइम की वैल्यू जीरो है तो वेलोसिटी कितना है? u. इस पॉइंट को मैं मानता हूं u. Clear? Now at time t,
ये ओरिजिन है 0, जब टाइम t है तब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है v, एंड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस। देखो जब आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया था पिछली वीडियो में तो वो यहां से पास हो रहा था, क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वहां पर एज्यूम किया था 0, बट हियर एट t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी इज u। क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, first equation to prove v equal to u plus at. Students, we know very well that with the help of velocity time relation we can obtain the acceleration. How? By finding its slope. So हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ हमें गिवन है इसका स्लोप हम एक बार निकालेंगे। क्लियर? एंड वेलोसिटी टाइम का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। सो नाउ for finding the slope we have to make a triangle. Clear? Students, this point I am assuming A, B and C. Clear? यहां से यहां तक की वैल्यू u, यहां से यहां तक की वैल्यू v, क्योंकि जब टाइम t है तो वेलोसिटी कितनी है? v. सो स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v माइनस यू। क्लियर? और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, तो b टू c की वैल्यू क्या हो जाएगी? v माइनस यू। नाउ o टू t, ये वैल्यू कितना है? t टाइम। सो a टू c ये भी कितना हो जाएगा? t। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्लोप ऑफ velocity time graph, it gives acceleration and acceleration is equal to slope क्या होता है? perpendicular BC divided by base AC, तो BC अपॉन AC, BC की वैल्यू B टू C V माइनस U एंड AC की वैल्यू T। सो स्टूडेंट्स, V माइनस U T यहां पर चला गया, so v equal to u plus at. This is the first equation of motion which we have derived. Clear? Now second equation of motion, that is s equal to ut plus half at square. Hope so that you have noted it. स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हमेशा ध्यान रखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली। नाउ सेकंड इक्वेशन, टू डिराइव s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इन दिस इक्वेशन वी हैव डिस्टेंस कवर्ड, एंड विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड। हाउ? by calculating the area under velocity time graph. Clear? So now we have to calculate the distance in time t. ये ओरिजिन है, टाइम t यहां तक है। क्लियर? सो 0 से t टाइम तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो एरिया अंडर द कर्व आएगा। तो कर्व यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म होता है, तो इसका जितना भी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर होगा वो आपको क्या देगा? एरिया। सो नाउ the area will consist like this. Clear? So it consists ACB, triangle ACB, and let this point is D and this point is E. So area of triangle ACB plus area of rectangle AEDC. Clear? So we know
एरिया डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ। क्लियर? और जो ये ग्राफ हमारे पास है उसका प्रोजेक्शन एक्स पर कितना है वो एरिया हमें निकालना है। तो इट कंसिस्ट वन ट्रायंगल एंड दिस इज रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEDC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEDC. Now, area of triangle ACB. This is the right angle triangle ACB. 1/2 base into height. Base, ये लाइन बेस है तो ये वैल्यू किसके इक्वल है? टाइम t के, क्योंकि ये t है तो ये भी t आएगा। बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है? B to C, तो B से C की वैल्यू क्या है? V माइनस U प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहां पर ये वैल्यू कितना है? U, और ये वैल्यू कितना है? T। तो U इंटू T इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEDC। तो U इंटू T। क्लियर? नाउ एस वी हैव UT, वी हैव नाउ हाफ AT स्क्वायर वी रिक्वायर। वी हैव हेयर V माइनस U, लेकिन V माइनस यू की जगह मुझे चाहिए A इंटू टी, क्योंकि T एक पहले से ही है। पहले इक्वेशन से देखेंगे V इक्वल टू यू प्लस AT। फ्रॉम हियर वी कैन राइट V माइनस यू इक्वल टू AT। क्लियर? लेट इट इज सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन स्टूडेंट जो हमारे पास पहली इक्वेशन आई थी वो आई थी V इक्वल टू यू प्लस AT। चलो मैं यही लिख देता हूं अभी। From first V equal to U plus AT, so V minus U equal to AT. So here we can replace V minus U by AT. So S equal to 1/2 into T into V minus U को हम क्या लिख सकते हैं? AT plus UT. So S equal to UT plus half AT square. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, आप यहां पे पैरामीटर लिख भी सकते हैं। जैसे B टू C की वैल्यू कितनी है? V माइनस U। ठीक है। E से D तक की वैल्यू कितनी है? T। A से C तक की वैल्यू कितनी है? T। स्टूडेंट यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? V। सो E2, यहां से यहां तक की वैल्यू E, तो D से B तक की वैल्यू भी कितनी है? V। नाउ E से A तक की वैल्यू कितनी है? U। सो D टू C की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? सबसे पहले लिख रहा हूं E टू A, और यहां से DC की वैल्यू भी कितनी है? U। ठीक है। Okay students, it is all about your second equation of motion. Now we have third equation of motion. That is V square minus U square equal to 2AS. Students, जब भी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हम या तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं या फिर इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये क्लियर है बात? ठीक है। हमने दो इक्वेशन निकाली, पहली स्लोप से, सेकंड एरिया से। इस इक्वेशन में भी डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास है। ठीक है। इसका मीनिंग है ये इक्वेशन भी एरिया से निकलेगी। क्लियर? बट अब thोड़ा ध्यान से देखना, मैं शेप कुछ और बताने वाला हूं। यदि आप AEDC को देखें, दिस इज अ ट्रेपीजियम। ये आपके पास एक ट्रेपीजियम की शेप है। ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ट्रेपीजियम के बारे में तो इन द नेक्स्ट क्लासेस यू विल स्टडी इट। ठीक है। तो ट्रेपीजियम की पहचान क्या होती है? एक और एक ये साइड है, ये दो साइड आपस में पैरेलल है।
क्लियर। और इन दोनों पैरेलल के साइड के बीच एक परपेंडिकुलर यहां पर होता है, तो ये शेप है ट्रेपीजियम की। सो इस पूरी शेप को मैं ट्रेपीजियम कह रहा हूं। एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम विल गिव द डिस्टेंस कवर्ड, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। अब हम दोनों को अलग अलग लिखने की बजाय मैं सीधा इसको बोल रहा हूं ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम का एरिया आपको क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AEDCB, AEDC एंड B। ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर। देखेंगे 1/2 एज इट इज सम ऑफ पैरेलल साइड, वन साइड एंड टू साइड, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड AE प्लस BD, AE प्लस BD इंटू परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल साइड्स। एक ये साइड है और एक ये साइड है, इनके बीच परपेंडिकुलर क्या है, ये लाइन, तो AC। सो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, स्टूडेंट्स देखेंगे अब AE की वैल्यू, AE दिस इज U, ठीक है, हमने यहां पर लिखा भी है EA की वैल्यू U है, प्लस BD, BD देखेंगे यहां से यहां तक की वैल्यू V, तो यहां से यहां तक की वैल्यू भी कितनी है, V इंटू AC, AC ये वैल्यू कितना है, T। ओके नाउ स्टूडेंट्स, I am writing it as 1/2 V plus U into T. But in this equation, we don't want time. Clear? So, again, by the equation 1, V equal to U plus AT. Clear? Student, from here, we can write A equal to V minus U upon T. Sorry. T equal to V minus U upon A, because in the equation हमें टाइम नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर टाइम की वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूँ। V इक्वल टू U प्लस AT है, तो T की वैल्यू देखो यहाँ से U इधर आ जाएगा, तो V माइनस U अपॉन A। इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर दो आप, तो 1/2 इंटू V प्लस U इंटू T की वैल्यू V माइनस U अपॉन A, A प्लस B एंड A माइनस B, इट इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स में रिलेशन आती है आपके पास। सो इट इज इक्वल टू 1/2 A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर, सो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाय A। सो स्टूडेंट्स 2A इधर चला जाएगा, 2AS B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, देयरफॉर V स्क्वायर माइनस U square equal to 2AS. This is all about your third equation of motion. Clear? Students, इक्वेशन को फाइंड आउट करने में कुछ भी नहीं था, केवल आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, पहली बात ये। क्लियर? सेकेंड, यहां पर मैंने बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, तो टाइम 0 पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा u। जब टाइम t है तो वेलोसिटी कितना है v, तो हमारे पास ये ग्राफ था, ठीक है। तो पहली इक्वेशन जो v इक्वल टू यू प्लस AT है, हमने कैसे फाइंड आउट की, इसके स्लोप से। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, तो दोनों पॉइंट से एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया, ठीक है। तो हमने यहां से एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहां से ले लिया और वहां से v इक्वल टू यू प्लस AT हमने निकाल लिया। सेकेंड, हमें अब डिस्टेंस निकाला है, इक्वल टू u2 प्लस हाफ AT स्क्वायर। एरिया अंडर द कर्व, कर्व हमारे पास यहां से यहां तक का है, तो पूरा एरिया हमें निकालना है। इस एरिया में ट्रायंगल और रेक्टेंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, इससे हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन भी एरिया से ही हम निकालेंगे, बट हम इसको मान लेंगे अब ट्रेपीजियम शेप। ये ट्रेपीजियम की शेप है, तो इसका सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी।
और लास्ट में बस इस चीज का ध्यान देना, जैसे ये ओरिजिन है, ये वैल्यू u है, तो e टू a u, तो यही वैल्यू cd की बन जाएगी। ये वैल्यू v है यहां तक, तो e टू दिस पॉइंट v, और यही वैल्यू bd की बन जाएगी v। यहां से यहां तक v है, यहां से यहां तक u है, ये v और ये u, तो ये v माइनस u आ गया, और यहां से यहां तक टाइम t है, तो सेम यहां से यहां तक भी टाइम कितना आ जाएगा, t। क्लियर? So students, this is all about your equation of motion, but remember, you can apply this equation of motion if acceleration is uniform. So students, I hope it is sufficient for today's, and in the next video, we will do the numerical based on equations of motion. Clear? So students, have a nice day and thank you.